So welcome back to my channel again. मैं रोहित कुमार वैश्य. I am standing in front of you with my channel English Guru. It is a very important part of your life how to get involved with the English, and it creates a massive impact on you when you speak English in a very proper manner. There is a lots of things which you have to see in yourself, your posture, your gesture, your verbs, your basic of English, your basic knowledge of verbs, your basic knowledge of tenses, all creates a perfect English speaker. So my friend, it is a very important part of your life how you are just polishing yourself with different kind of languages. I don't want to say that English is the only language by which you can polish yourself, but there are lots of languages on which you can work and you can polish yourself. So I would like to say English is only word or is only language on which you can make your career in a very positive manner. And I would like to say this channel make you a perfect English speaker. So I would like to say this to you. I got a lots of comment about my English teaching. Some people are saying that you just need to speak in English only. So I would like to say the all person who just think the same condition, because English is a very important part of yourself, and if I am a good speaker, I am a good teacher, so I just need to involve with your current language. Suppose you are a good English speaker, so you can understand what I am saying. But if a person from the zero background of English, how can he speak English, how can he learn English from this high level of English language? So I would like to say to that all comments that I just need to gel up with that guys who just started their self from the zero line, and just they want to polish their self in a proper manners. So myself Rohit Kumar Vaish, I am your host. Today we will speak about our present indefinite tense negative. So my friend, it is a very important part of yourself. I just need to make myself in a proper manner, in a very different kind of manner. I have to use English. I just gel up with Hindi, by which all person can understand who just want to learn English in a very proper manner, in a very basic manner. So I would like to say, please concentrate this channel, please concentrate about what I am saying to you. So today we will start present indefinite negative. So दोस्तों, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार आप इंग्लिश में ही बात कीजिए. सो दोस्त, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहूँगा, इंग्लिश में मैं बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में मैं आपको सिखा सकता हूँ. अब इंग्लिश सिर्फ उसी के लिए अच्छा है जो इंग्लिश के इस लेवल को मैच कर रहा है. ये चैनल मैंने सभी के लिए बनाया है. ये एक क्लास, कोचिंग क्लास सभी के लिए स्टार्ट की है. जिसको हिंदी बहुत माइन्यूट लेवल पे समझ में आती है, इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, और इंग्लिश को वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या किस तरीके से पढ़ा जाए, तो उसके लिए आई डोंट थिंक सो ओनली इंग्लिश is a better platform to learn English. So today we will learn about present indefinite negative. So let's begin with the bang. So दोस्तों, I would like to say कि जो भी लोग इस कोचिंग क्लास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना समझाना चाहूँगा कि जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको, उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्पेसिफिक मैनर पे समझिएगा. क्योंकि सबसे पहले अब मैं इस पहचान को बताने जा रहा हूं. सो सबसे पहले अब इस चार्ट को देखिए. सो पहचान, सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव. इसकी पहचान, पहला पॉइंट जो रूल नंबर 1 है, पहचान ता है, ती है, ते हैं. रूल नंबर 2, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और इसमें नेगेटिव में सारे वाक्य बनाए जाते हैं. तीसरा रूल नंबर, इसमें डेली रूटीन को नेगेटिव में बनाया जाता है. ठीक है. उसके बाद फोर्थ रूल देखिए. फोर्थ रूल क्या रहा है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. सो सबसे पहले ही, शी, इट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे. आई, यू, वी,
दे, दोस, दीस सब के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। सो ये सारे रूल्स, ये जो सारे रूल्स हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का रूल है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा एग्जाम्पल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। अब आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं खाना नहीं खाता हूं। इसकी इंग्लिश, मैं खाना नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट फूड। सिंपल सा आई का यूज हुआ है, डू नॉट का यूज होगा आगे, एंड ईट फूड, राइट। वह नहीं खेलता है। So he does not play, right? तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो। You do not go to school. So इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात करी। सो दोस्तों, ये सारा रूल आपका सिंपल सा डेली रूटीन के नेगेटिव में बनाया जाता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। क्योंकि टेंस में हम थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, बट मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहूँगा कि टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना ये हमारा काम है, और इसको प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं दोबारा से ये वर्ड बार बार यूज़ करता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर सब कुछ समझा देंगे, और मैं वो नहीं चाहता हूँ। क्योंकि एक समझना, एक पढ़ना, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अगर आप समझेंगे अच्छे तरीके से तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि ऐसे कोचिंग सेंटर्स बने हैं जिसमें आपको 1 घंटे के अंदर सारे रूल को समझा दिया जाएगा। तो मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव में। थैंक यू।